सलामी देगी, सलामी दे। सलामी के लिए हाजिर है।
International School, Dhane. Mr. Panditra Patil sir, with his beloved wife and director of our Blossom International School, Dhane, Mrs. Let us celebrate this special day or special occasion of Republic Day by remembering Chairman of Drafting Committee, R.N. Rao, Constitutional Advisor to the Constituent Assembly, Surendranath Mukherjee, Chief Draftsman of the Constituent Assembly, and other members of Constituent Assembly. The Constitution of a country is the backbone of that country, and we must thankful that India has such a powerful constitution. That is one of the biggest, I can say, responsibility on the shoulders of your India is in your hands. Therefore, we wish that you always fulfill all the duties and responsibilities as a citizen of India. एका मुलीच्या हातातून राष्ट्रध्वज खाली पडतो. बघितलं का आपला तिरंगा खाली पडला. हो चल आपण जाऊन सांगायला पाहिजे. बघा ना आपल्या देशाचा तिरंगा खाली पडला. तुमचं लक्ष नाही का? मला माफ करा, माझं खरंच लक्ष नव्हतं. तुम्हाला प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत का म्हणतात? नाही मला नाही माहिती. तुम्ही आम्हाला सांगणार का? हो, कुठलेही सामाजिक शुभकार्य करताना राष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्राचा सन्मान करण्यासाठी आपण आधी राष्ट्रगीत म्हणतो. हो आता आम्हाला कळालं. कई वीरों ने अपने बलिदान दिए. उनमें से थे भगत सिंह. मित्रों, भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली पूर्व संस्थापक उनकी मां विद्यावती जब उनसे मिलने गई तब भगत सिंह ने अपने मां से छोटा सा प्रश्न किया. मां, कल जब ये तेरा लाल फांसी के फंदे पर सो जाएगा, मौत के वादियों में खो जाएगा, तब तुम रोगी तो नहीं? अपना आंचल अपने आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? तब भगत सिंह के मां ने जो पंक्तियां कही वो आज भी सुनकर हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. और वो पंक्तियां है, बेटे देशभक्तों की जननी है तो अपने रक्त से गुलामियों की तान धोती है. बेटे देशभक्तों की जननी है तो अपने रक्त से गुलामियों की तान धोती है. और राष्ट्रहित सूत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं, सिंहारों की मां रोती है. और राष्ट्रहित सूत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं, सिंहारों की मां रोती है. तो मैं तेरे शहादत पर रोऊंगी नहीं, खुशी से मारी जाऊंगी. तू आजादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी. अब बात आखिरी सुन ले मेरे जिगर के टुकड़े. हंसते हंसते फांसी चढ़ जाना मेरे प्यारे पुतड़े. हंसते हंसते फांसी चढ़ जाना मेरे प्यारे पुतड़े. अरे मरते दम तक तन मन तेरा जीवन देश पे उछले. अरे मरते दम तक तन मन तेरा जीवन देश पे उछले. और वंदे मातरम हो तो पर जब प्राण तुम्हारे निकले. और वंदे मातरम हो तो पर जब प्राण तुम्हारे निकले. हमारे करोड़ों सलामे से वीरों को और उनके माताओं को धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. जोर से बजाओ. आगे आओ, आवाज आगे आओ थोड़ा. आवाज बढ़ो, आवाज इसको कम कर थोड़ा. इसको
वाटलं ए आवाज कमी कर अजून वाढवतो Respected Principal Ma'am, respected Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Viraj Kapandis. Today I am here to share speech on special occasion of Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. It is celebrated to show the respect to our Indian Constitution. The Indian Constitution came into effect on 26 January 1950 and India became independent republic country. This day is celebrated to show the respect to the freedom fighters who demanded for Constitution of India on this day. Republic Day is national festival in India. School and colleges celebrate this day with patriotic zeal. The main festival of this day is celebrated at Rajpath, New Delhi. At Red Fort, many activities like flag hosting and parade are available on this day. We remember national heroes, freedom fighters and soldiers who sacrificed their lives for India on this day. I am Indian and I love my country. I am Indian and I love my country. Here is unity in diversity. Here is unity in diversity and everybody respect it. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Hindu, Muslim, Sikh, Christian all live with unity. We are one big family. We are one big family. We are happy, happy. We are happy, happy. Happy, happy big family. Thank you. Jai Hind. प्रेम घेत जाय मध्ये मध्ये पूर्ण तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी 2-3 फोटो काढा फक्त
काला लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। बघ ना आई आज वेळ कशी वैरीण झाली, तुझी भेट न घेताच माझ्या जाण्याची वेळ आली। घायाळ जरी झालो तरी अजून सुद्धा लढतो आहे, आई इंच इंच जखमा छातीवर घेऊन पत्र शेवटचं लिहितो आहे, पत्र शेवटचं लिहितो आहे। लहानपणीच्या सर्व गोष्टी आई जशाच तशा आठवतात, या बर्फावरती माझ्या डोळ्यातले अश्रू सुद्धा गोठावतात। खूपदा वाटतं आई तुझ्या कुशीत येऊन निजावं, तुझ्या प्रेमाच्या वर्षावात पुन्हा एकदा भिजावं, पण मला ठाऊक आहे आली वेळ मला सोडून रित्या हाती जाणार नाही। आपलं घर आठवत एक तास रडत आहे, रडता रडता आहे पत्र शेवटचं लिहितो आहे, पत्र शेवटचं लिहितो आहे। तुमच्यासाठी बाबा बरंच काही करायचं होतं, तुमच्या खांद्यावरचं ओझं थोडं माझ्या खांद्यावरती घ्यायचं होतं। पहा ना बाबा नशिबानं कसा घात केला, माझ्या प्रेताचा भार सुद्धा तुमच्या खांद्यावरती दिला। तुमच्यासाठी काही करू शकलो नाही म्हणून मरणाआधीच मरतो आहे, म्हणून मरता मरता बाबा हे पत्र शेवटचं लिहितो आहे, पत्र शेवटचं लिहितो आहे। तुझ्या साऱ्या आठवणी मनात भैया आहेत, घर करून बसल्या आहेत। आत्ता 4-2 गोळ्या उजव्या दंडात घुसल्या आहेत। उजव्या दंडात गोळी घुसताच तुझी आठवण हिलावून गेली, मी तुझा उजवा हात आहे असं म्हणण्याची वेळही आता सरून गेली। आपल्या छोट्या छकोलीची काळजी तू घेत जा, माझ्या वाटेची राखी सुद्धा तूच आता बांधून घेत जा। ज्या आपल्या तिघांचा लहानपणीचा फोटो पाहून एकटाच झुरतो आहे, झुरता झुरता पत्र शेवटचं लिहितो आहे, पत्र शेवटचं लिहितो आहे। तो रक्षाबंधनाला बांधलेला राखीचा धागा छकुली अजूनही हातात आहे, यावेळी ओवाळणीही दिली नव्हती हेही माझ्या ध्यानात आहे। तूच सांग तुला आता ओवाळणी काय देऊ, इथून निघून गेल्यावर मी रक्षाबंधनाला कसा काय येऊ? ज्या हातात राखीचा धागा आहे त्याच हाताने लिहितो आहे, तुला आठवता छकुले पत्र शेवटचं लिहितो आहे, पत्र शेवटचं लिहितो आहे। माझ्यामुळे सखे तुझं आयुष्य विरार होणार आहे, माझ्यासोबत मी तुझं सर्वस्वच नेणार आहे। आपल्या 2 चिमण्यांना माझा शेवटचा पापा दे, त्यांच्या डोक्यावर तुझा हात ठेवून माझा शेवटचा आशीर्वाद दे। बघ ना ग सखे वेळ कशी सरकन निघून जात आहे, काळोख माझ्या डोळ्यासमोर थैमान घालत आहे, तरी रक्ताने भरलेल्या हाताने पत्र शेवटचं लिहितो आहे, पत्र शेवटचं लिहितो आहे। आई पुन्हा 4-2 गोळ्या काळजामध्ये लागल्या आहेत, तशाच तुझ्या सगळ्या आठवणी पुन्हा मनामध्ये जागल्या आहेत। माझ्या समोर आहे काळोख दाटून येतो, इच्छा नसतानाही तुझा शेवटचा निरोप घेतो, तरी तुला आई हे पत्र शेवटचं लिहितो, पत्र शेवटचं लिहितो। आई जमलं तर पुन्हा मी जिवंत होऊन येणार आहे आणि त्यावेळी फक्त तुझ्या सूत्री जन्म घेणार आहे। तू रडू नकोस आई, तुझ्या हुंक्यांचा आवाज कानी येतो आहे,
आवाज ऐकता ऐकता तुम्हाला आठवता लढता लढता झुरता झुरता आणि मरता मरता हे पत्र शेवटचं लिहितो आहे. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हो सकते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसमी का परचम लहरा दो। नमस्ते, मेरा नाम आरती आशीष देवी, मैं किसी भी कक्षा में पढ़ती हूँ। वैसे दोस्ती आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। न पूछो जमाने कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व हर भारतवासी के सम्मान और गौरव का पर्व है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947
वो आजाद हुआ। परंतु आजादी के बाद किसी भी प्रकार के कानून या नियम देश के लोगों के लिए नहीं बना था, तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया। किसको दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नेतृत्व के स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन अथक परिश्रम करके भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। भारत देश एक लोकतांत्रिक और पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र में घोषित किया गया। हमारे भारत देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान अपने आप में पूर्ण है। इस विशाल और महान संविधान ने हमें हमारे मौलिक अधिकार और हक के लिए लड़ने की ताकत दी है। इसकी रक्षा करना हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है। आइए आज हम भारतवासी अपने देश के सभी वीरों को नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र और गणतंत्र देश में खुशी से रह रहे हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना, इसका जब तक दिल में जान है, इसका जब तक दिल में जान है, इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादर से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन है खूब तेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, ठिकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के दूर कहे। मेरी मिट्टी में दिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। 20 मैडम जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो कर मैं दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो कर मैं दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जगत पे मिलन बधाइयां, जगत पे मिलन बधाइयां, जगत पे मिलन बधाइयां। हंसते करके सुरमा सुरमा जमाने है करना एक सुरमा सुरमा सुरमा
आदरणीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे सारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम यहाँ हमारे प्यारे भारत देश का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि भारतवासी के लिए गर्व की बात है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ था, तब भारत देश स्वशासित देश नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत देश स्वशासित देश घोषित किया गया, तभी से भारत का संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश इसके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे समस्याएं हैं। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इन सारी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारे देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समाप्त एक शायरी से करना चाहूंगी। देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्ति से ही देश का मान है। हम इस देश के फूले यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। क्लोज घे ना, थोडं फ्रेम केवढी घेतली, पूर्ण नको घेऊ ना, थोडीशीच घे ना, अशी जेवढे लोक आहेत कर ना, काय नाही.
Constitution of India came into force on 26 January 1950. However, it is adopted on 26 November 1949 under the chair. My dear friends, as we gather here today to celebrate Republic Day, let us all be filled with happiness and pride in the progress we have made as a nation. From the resilience shown in the adversities to the advancements in science and technology, we have all come a long way. Let us take a moment to reflect on the struggles and sacrifices of those who came before us. Their tireless efforts and unwavering dedication has brought us a free and independent nation. Think of the brave men and women in uniform who put their lives on the line every day to protect our country, and the countless others who fought for our independence, right to vote and right to speak freely even. So as we raise the flag and sing the national anthem with pride, let us all be filled with happiness and recall the struggles and sacrifices of our ancestors. They fought for an India that was free from oppression and tyranny. Now it's our duty to continue that legacy. India's diversity and unity are our strengths, but we need to address some issues such as poverty, inequality and discrimination. Education, entrepreneurship and infrastructure development are a key to a fair and prosperous future for all. Let's pledge to strive for making our India a nation where everyone can reach their full potential regardless of their background. The tricolor waves high and proud, a symbol of our nation unbound, a day of celebration and pride for our republic side by side. With unity and strength as our guide, we march forward side by side. Our diversity is our treasure, a nation of different cultures and pleasure. Let's honor those who have fought for our independence with all they had got. On this Republic Day, let's pledge to make our nation a better age. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
सबसे बड़ी मुझसे बस तो करता पे देखो जीत धड़ कब से इंतजार था आज भी शाम को क्या कहता है ये तेरा हिंदुस्तान का किसी के भी आगे झुका नहीं रहा मैं हूँ उस देश का बैठ के लेना सारा स्ट्रगल और यस राजेश यादव चरक। यस सर। मेरा बोर्डिंग चाणक्य, कैप्टन सचिन चौड़ाल 15। यस सर। विक्रम बत्रा शेरशाह। यस सर। हमें पॉइंट 540 घोड़े कैप्चर करने का टास्क दिया गया है। भाई तुम दोनों का विक्री सिंबल क्या होगा? जीनी सर ओ या और विकी तेरा? सर ये दिल मांगे वोट। ये दिन मांगे तो क्यों विकी? सर .4875 के बाद रुकने वाला नहीं, मुझे भगाना है इन काफिरों को यहाँ से। Impressive. All the best boys, you got speed. That was the easy catch. Point 5140 को दोनों कंपनीज ने काफी इजीली कैप्चर कर लिया था। साहेब आप ये कैसे कर लेते हो? देखिए सिंपल सा फंडा है। If you are a 4G, then you live by chance, love by choice, kill by profession. सर आपको और कैप्टन संजीव सर को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सर मीडिया वाले आगे आओ ना रे, पीछे कुछ नहीं दिखता बेटा। So Captain Vikram Batra, tell us about your victory. Our CEO Colonel Joshi and brief task about .5140 and before advancing for attack. On our radio sets a Pakistani soldier, whomsoever it was. He said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you will have tough time. And my guys went wild that how can their Pakistani soldier challenge us? My company victory symbol was Dil Mange More. The guys were so highly charged that they were wanting there should be more bunkers. And we got the more charge. Yes, सही सुना आपने। मेरा भाई अब लेफ्टिनेंट नहीं था, now he was a captain, कैप्टन विक्रम बत्रा, एंड उसकी बहादुरी के लिए भी उसे परमवीर चक्र के लिए भी सजेस्ट किया। चिंगारी खुद से जुनूं तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। चिंगारी खुद से जुनूं तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। कैप्टन विक्रम बत्रा, तुम लोगों की वजह से सबसे मुश्किल पीक को रिकैप्चर करने का अगला टास्क भी हमारे बटालियन को दिया गया है। .4875 सर। एग्जैक्टली। ये भी अगर हमने रिकैप्चर कर लिया तो वॉर इज ओवर। कब जाना है सर? नो, तुम लोगों की बटालियन नहीं जाएगी। हमारे बटालियन में और भी कंपनीज है, वो जाएगी .4875 को रिकैप्चर करने के लिए। You guys are in rest and recoup. सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे रेस्ट एंड रिकूप नहीं करना, .4875 पर जाकर ये वॉर को खत्म करना है। ये दिल मांगे वो। राइट सर। सफाई, now about .4875 अपनी कंपनी से रेडी कर। चिल्ला कर देशभक्ति की बातें नहीं करनी आप लोगों से। आप लोग देशभक्त हो इसलिए आओ। जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया उसे कोई नहीं हरा सकता। और मैं ये पहले से जानता हूँ कि आप लोगों के अंदर से डर बहुत पहले ही निकल के बैठा है। अगर सच कहूँ तो हम डेल्टा कंपनी के लोग बड़े लकी हैं कि .4875 पर से दुश्मन को हटाने का टास्क हमें दिया है।
इस चोटी पर जो बैठ गया वो इंडियन टेरिटरी का 70 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में रख सकता है। पाकिस्तानी बैठे हैं वहां, हम एक एक को वहां से हटाएंगे और .4875 को रिकैप्चर करेंगे। अगर ये वॉर अपने देश को जिता दी तो अमर हो जाओ, जिंदा रहे तो भी अमर, मर गए तो भी अमर। तो बोलो दुर्गे माता की जय। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने कहा था, सुना है कि वॉर होने वाली है,